So here in process queues, what we have to study is what are the different type of queues that we are going to study. Okay? So if you have studied data structure, or you will be studying one topic in data structure, that is linked list. Okay, so these queues that we will be studying, they are implemented with the help of linked list, right? So now let's study that. I hope that process state diagram is clear to all of you. Is that Yes, process ma'am. state clear to all of you? Anyone having any doubts? Can Now you repeat it once? I've already done it in detail 1 hour. Have you gone through the Okay, video? okay, ma'am. Okay, ma'am. You were there in the class when I taught that Yeah, process. yes, ma'am. I forgot. Actually, for that I have to draw that particular thing again and I have to explain everything. So already in Okay. detail, actually that was not a 1 hour topic, but I already have dedicated 1 hour for particular that topic only. So that thing will be repeated by this extended diagram. So now what we have to do is we will be studying about the different type of queues. One of the queue that we will study here is job queue. So we have job queue associated with us. Now we'll study what will happen in this. So first of all, understand the block diagram. So from this job queue, we come into the state new, and all those processes which comes into the new state then goes into the ready queue. So the type of queues, first one is job queue, another one is ready queue. Then what we do is we schedule the different processes, and then the scheduled process is given the CPU. Not all the processes, but only one process at a time is given the CPU. After completion, after the process completes its execution, it goes into the termination phase. Right? So I have already told you that this is the task of long-term scheduler. Today we will also discuss about schedulers in detail. So this is the task of the long-term scheduler, that is process creation, right? And here in this ready queue, what we will do is, if there are more number of processes into the ready queue, which state we send it to which state? If you all remember? Suspend ready state, ma'am. Suspend Very ready. good. So I call it as suspend. ठीक है? And then जब process complete, जब तक process पहले हम उसे suspend करते हैं process को, and जब वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है काम, तो फिर resume कर देते हैं. This is resume. ठीक है? This was also clear, right? और ये task कौन से scheduler का था? This was the task of this. Short term scheduler. Very good. This is the short term. ध्यान से सोचो. हाँ मैम, शॉर्ट टर्म ही था. मीडियम टर्म. मीडियम Medium. टर्म. Yes, it was medium term. Yes. So this was medium term scheduler. ठीक है? Now यहाँ पे जब हमारी प्रोसेस स्केड्यूल होती है ना, दिस इज शॉर्ट टर्म. अभी जब आप इसकी मीनिंग्स को अच्छे से समझ जाएंगे तब आपको और डिटेल में समझ आएगा. ठीक है? अब मैंने आपको बोला था, अगर एक प्रोसेस इज ऑफ टू टाइप्स, राइट? It cannot always be in the CPU. So when it is not in the CPU, where will it go? When the process is not Wait. into this, Wait state. Wait block. what state that is called as? We Wait call it slash wait block or state. Wait block. yes, yes. So if let's say the process has to go for input output, so we reach it to this block state. ठीक है? हम उसको ब्लॉक पे भेज देंगे, और ब्लॉक में वो क्या करने जाता है? इनपुट आउटपुट कंप्लीट करने जाता है. ठीक है? और जैसे ही इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा वापस से? रेडी क्यू. Ready. वेरी गुड. इनपुट आउटपुट कंप्लीट होने के बाद इट विल गो बैक टू द रेडी क्यू. ठीक है?
इसी तरीके से क्या होता है, कभी कभी हमारे पास कोई हो सकता है कि क्वांटम आ गया हो. I told you last first group is very much clear. Yesterday I told them about the different scheduling algorithms. तो अगर हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए कोई क्वांटम आ जाता है, क्वांटम और अ टाइमर और प्रायोरिटी आ जाएगा, तो क्या करेंगे तब भी क्या होता है. देखो अगर यहाँ पे एक प्रोसेस था P1 और यहाँ पे रेडी क्यू में था P2, तो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस P2 अगर आना चाहेगा, दिस P2 इज हायर प्रायोरिटी प्रोसेस, तो P1 को कहाँ भेज देंगे अभी हम थोड़ी देर के लिए, CPU से बाहर भेज देंगे और P2 will occupy this. This is clear or not? I told you there are 2-3 reasons. One reason is, when do you think that a process already into the CPU leaves the CPU? Either it has gone for input output operation और क्या हो सकता है, हाई प्रायोरिटी या हाई फिर टाइम प्रायोरिटी प्रोसेस शेड्यूल. अगर आ जाएगा तो, या फिर क्वांटम होगा तो. If we have set a time quantum for every process, so every process will be in the CPU for a fixed amount of time. So if it is P1 is allocated 2 unit of time, then after 2 unit of time P2 will preempt P1. Last time I also told you about preemption and non-preemption, if you remember. Can anyone tell me what is the difference between preemption and non-preemption? Anyone? Anyone of you? मैम प्रीएम्पशन इज बेसिकली जब लाइक फोर्स नहीं कर पाते हो आप किसी प्रोसेस को बाहर जाने के लिए, शायद ऐसे कुछ था. ऐसे नहीं, कच्चा पक्का नहीं, क्लियर बताओ. एनीवन एल्स? मैम प्रीएम्पशन में वो पिछले वाला जो प्रोग्राम अभी सीपीयू में होता है उसको प्रीएम्प्ट करके जो दूसरा प्रोग्राम होता है वो आ सकता है, और नॉन प्रीएम्पशन में पॉसिबल नहीं है. सब जब तक सीपीयू में कंप्लीट नहीं हो जाता प्रोग्राम, Exactly. दूसरे वाला नहीं आएगा. Right. So when you can preempt any process which is already executing into the CPU, what are the criteria of preemption? Priority, input, output, process or quantum. नहीं, priority and time quantum. Input Okay. output वो किसी की मर्जी से नहीं जा रहा है. Input output never says that it is. देखो वो input output अपनी मर्जी से जा रहा है, समझ लो. अगर मान लो मुझे जाना है, अभी मुझे CPU में काम करने का मन नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग बिकॉज यू वांट टू कम, आई एम गोइंग बिकॉज आई वांट टू गो. डिफरेंस समझने की कोशिश करो. प्रीएम्पशन फोर्सफुली आप दूसरे प्रोसेस को हटा रहे हो. ठीक है, क्लियर है कि नहीं सबको? प्लीज एग्री. Yes, ma'am. एग्री और डिसएग्री. Yes, ma'am. अच्छा, आप देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, एक और टॉपिक है जो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीक पढ़ाऊंगी. सो हियर देयर इज़ वन मोर कॉन्सेप्ट दैट इज़ फॉर्क. अभी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रही क्योंकि बहुत डिटेल प्रोसेस है, इस पर एक कंप्लीट लेक्चर आई विल टीच यू. तो फॉर्क आएगा तो हम क्या करेंगे, पेरेंट वेट करेगा और फिर से हम क्या करेंगे, रेडी स्टेट में चले जाएंगे. ठीक है. सो इज इट क्लियर दिस कंप्लीट डायग्राम? सो एनी वन ऑफ यू प्लीज एक्सप्लेन दिस इन नेक्स्ट 2 minutes. फिर हम लोग क्यूज के बारे में स्टडी करेंगे जल्दी से, कोई भी. एनी वन ऑफ यू? यस, बोलो भाई. करणदीप. यस मैम. मैम पहले प्रोग्राम जो होगा वो जॉब क्यू में आएगा, उसके बाद न्यू स्टेट में होके मैम वो रेडी क्यू में आएगा, एंड देन वो शेड्यूल होके सीपीयू में आएगा. बट अगर प्रोग्राम क्वांटम या फिर प्रायोरिटी हुआ तो उसके पीछे का जो प्रोग्राम होगा वो उसको प्रीएम्प्ट कर सकता है, और जो P1 वाला है वो इनपुट आउटपुट ब्लॉक में चला जाएगा, एंड व्हेन द प्रोग्राम कंप्लीट्स इट गोज इनटू द टर्मिनेट ब्लॉक. ओके. और तो बताओ कुछ. हेलो, एनीवन एल्स? अगर हाई आयुष. प्रायोरिटी वाला रेडी क्यू में आ जाता है तो फिर जो प्रोग्राम ऑलरेडी उसमें था उससे पहले वो सस्पेंड हो जाएगा, और जब वो हाई प्रायोरिटी वाला कंप्लीट होएगा तब वो वापस रेडी क्यू में आकर रिज्यूम होएगा और वापस हो जाएगा. ठीक है. चलिए अब मैं आपको वन बाय वन आई विल टीच यू अबाउट ऑल द क्यूज. सो बेसिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोसेस क्यूज, वी हैव 3 टाइप ऑफ क्यूज. उसके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. ठीक है.
first, second and third. The first one is job queue. Then we have obviously ready queue. मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हमेशा रेडी क्यू सुनने को मिलेगा. यू विल ऑलवेज हियर अबाउट रेडी क्यू. ठीक है. एंड द थर्ड वन इज जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता होता है, डिवाइस क्यू. दीज आर द 3 क्यूज. आई लाइक ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में अगर एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो आई कैन डायरेक्टली आस्क की व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूज. तो 3 के नाम 3 दे दिए, इसमें एक फोर्थ है जिसको मैंने ऐसे कुछ भी और नाम दे दिया, और आपको मैं पूछ सकती हूँ कि कौन सा इसमें से क्यू नहीं है और एमसीक्यूज में. सो यू शुड नो. ठीक है. सो नाउ लेट्स, एग्जाम्स वैसे ऑफलाइन होने के चांसेस है कि ऑनलाइन ही होंगे? अभी देखो थर्ड वेव अगर आएगी, इन केस आ जाती है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, फिर से लॉकडाउन हो जाए, हो सकता है ना 15 डेज या 1 मंथ का लॉकडाउन हो सकता है अक्टूबर में. आई डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, बट अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, इन केस अगर फिर से ऐसा कुछ हो गया बीच में तो हो सकता है. बिकॉज द यूनिवर्सिटी गॉट फंक्शनल इन जनवरी एंड ऑल्सो इन मार्च लास्ट ईयर. मतलब जो सेमेस्टर गया है ना लास्ट सेमेस्टर में, सो इट वॉज फुली फंक्शनल इन मार्च कम्प्लीटली. सभी फैकल्टी भी आ रहे थे, बट एकदम से क्या हुआ, सेकेंड वेव आ गई और सब कुछ बंद हो गया. रिमेंबर और नॉट? सो इट वॉज अबाउट टू स्टार्ट और ये सेमेस्टर शुरू भी हो जाता, बट बिकॉज सेकेंड वेव जब आया तो अप्रैल में तो सब कुछ ही बंद हो गया, क्योंकि एमिटी की कैंपस के अंदर भी इतने सारे केसेस हो गए थे, अराउंड 180 केसेस. सो द थिंग इज, थिंग्स आर गोइंग स्मूथ नाउ एंड इट मे हैपन मे बी आफ्टर सितंबर और अक्टूबर कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर सब ब्लॉक हो जाएगा. सो वी कांट प्रेडिक्ट फ्यूचर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि नो वन इज श्योर कि क्या होगा अगले 3-4 महीने का, किसी को कोई आइडिया नहीं. ओके. अंडरस्टूड मैम. चलिए. ओके चलो वापस से चलते हैं. अब देखिए व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट जॉब क्यू. क्लियरली सुनिए, मैं आपको इसके नोट्स वैसे भेज दूंगी, अभी आप सिर्फ सुन लीजिए. ठीक है. नाउ ईच न्यू प्रोसेस गोज इनटू द जॉब क्यू. जब भी कोई नया प्रोसेस आएगा, जैसे ही आपको कुछ करना है, मतलब अगर आप मान लीजिए यूनिवर्सिटी में आते हैं, सबसे पहले आप कहाँ आएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे एडमिशन या फिर कहीं पे काउंसलिंग सेशन होगा, जहाँ पे काउंसलिंग या एडमिशन ब्लॉक होगा, वहाँ जाएंगे, है ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग एनीवेयर जस्ट टू गेट द ब्रीफ. सो सबसे पहले अगर इफ अ प्रोसेस वांट्स टू एंटर, इट विल गो इनटू द जॉब क्यू. Process in the job queue reside on mass storage and await the allocation of main memory. So basically, job queue signifies which memory? We have 2 types of memory. Tell me. सेकेंडरी मेमोरी. Exactly. It is secondary memory. ठीक है. अब if I tell you, if I am not a faculty of Amity University, before I was not selected here, I was sitting just in a waiting room and I was having my interview and all. So before that, I could not say that this is my university because I was not selected. है ना? Even before you did not take admission into Amity, you could not freely roam into Amity every day, and you cannot go access the resources of Amity. Like you cannot access the library resources, you cannot access the hostel facility. Once you take admission in Amity, then only you are take that thing. Are you understanding my point? Hello. So if I talk about Yes, ma'am. Amity University campus, which is a 110-acre space, that is a fixed space, right? And that will allocate only fixed number of students, let's say 4,000 or 5,000, no, not more than that. But when you are not selected, but you want to take admission and you are in job queue, where are you? You are in job queue. Are you all understanding? Yes, you want to take admission, just understand it this way. You all people, before you took admission in MNT, you wanted to take admission, but you were not admitted into MNT. So you are in secondary memory. Secondary memory was not that fixed space that was available with MNT, that is 100 acre space, 110 acre space, but you could stay anywhere in this world. That was a very infinite space. ठीक है? Now once the long-term scheduler, or you can say the admission procedures, like you had above 60% of marks, or you were fulfilling the different criteria of the admission, then only you got selected. Got selected by whom? Long-term scheduler
and then what happened? You got admitted into Ready MIT queue. University. अब आप सब रेडी क्यू में आ गए हैं, बट अभी आप कहाँ आना चाहते हैं? आप कैंपस में आना चाहते हैं. CPU is your campus, but because of COVID you are still waiting into the ready queue. Are you understanding my point? Once you get the information and everything gets finalized, then all of you will get your space to stay here in Amity University. But currently all of you are doing what? You all are waiting. You all are waiting to come to the campus. So once the higher authority decides, so till now they have scheduled only final year batch, 7th semester. Whom they have scheduled? Out of first year, second year, third year and fourth year, they have scheduled whom? High priority. They have higher priority, or you can say that because that is the final year and their project and all things are there. So that is why they have scheduled, out of so many years, they have only scheduled final year. And which scheduler has scheduled this? Short term scheduler. ठीक है? This is your higher authority who is scheduling from you from ready queue to CPU. So जो बार बार आप पूछते हो ना कौन जवाब देगा, ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जवाब देगा आप कब रेडी क्यू से CPU में यानी कि कैंपस में आ पाओ. ठीक है? अब आप बोलोगे एक ही तो कैंपस है ना हमारा, उसको मैं एक तरह से ले रही हूँ, सिंगल CPU, वन कैंपस, एमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा, वेर यू वांट टू कम. अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है? अब क्या हुआ, बच्चों ने बहुत शोर करा और बहुत एप्लीकेशंस जाने के बाद शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यानी कि हायर अथॉरिटी ने डिसाइड किया चलो ठीक है आप लोग सितंबर से कैंपस में आ जाइए. कहाँ आ गए अब आप लोग, सब लोग बोलिए? CPU. आ गए आप लोग, बहुत खुश हो, झूम रहे हो, नाच रहे हो, नई नई ड्रेसेस ला रहे हो, सब वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, सो मच एक्साइटेड. ठीक है? 8 मंथ के लिए यू स्टेड इन कैंपस एंड थर्ड वेव आ गया. सो वापस से अपना कहाँ चले गए? ब्लॉक स्टेट में, इनपुट आउटपुट स्टेट में चले गए. ठीक है या नहीं? या फिर ऐसे कह सकते हैं हायर प्रायोरिटी कौन आ गया? जो थर्ड वेव आया दैट इज अ प्रायोरिटी. बेसिकली वो एक प्रायोरिटी है जिसने हम सबको क्या कहा, जिसने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया हम लोग कैंपस में रहते हुए भी हमें कैंपस छोड़ना पड़ा. वी वर प्रीएम्प्टेड फ्रॉम द कैंपस बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ द डेडली वायरस. आर यू अंडरस्टैंडिंग पॉइंट? एंड ऐसे भी कह सकते हैं देन अगेन वी गॉट प्रीएम्प्टेड फॉर हाउ लॉन्ग. ये एक टाइम क्वांटम के लिए हमें वापस से भेज दिया गया अपने घर. कितने टाइम के लिए? मे बी 2 मंथ्स और 3 मंथ्स ऐसे करके, और 6 मंथ्स. समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? अब शायद ये रिलेट हो गया होगा आपको और कभी भूलोगे नहीं. मैम एक डाउट है पर. क्या बोलो? हमारा डिवाइस क्यू CPU ही होगा क्या? नहीं, डिवाइस क्यू इज अ डिफरेंट क्यू. CPU कैसे हो जाएगा? वो एक क्यू है, वेटिंग ब्लॉक एरिया है, दैट इज जस्ट अ वेटिंग एरिया. CPU इज द एरिया जहाँ पे आप काम कर रहे हो, और जितने भी ये तीनों क्यूज हैं ना इनमें आप काम नहीं करते हो, आप वेट करते हो. ठीक है? समझ गए आप लोग? हैव एनीवन गॉन टू तिरुपति बालाजी? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So or any other big temple, you know what happens there? मान लो यहाँ भगवान है, यहाँ बैठे हुए हैं भगवान. ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे होता है. I also have went there, और even एक गुवाहाटी में भी एक कामाख्या टेम्पल है, और there are many temples. I don't know आप लोग गए हैं कि नहीं. जो बहुत बड़े टेम्पल्स होते हैं ना उनमें क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग खड़े हैं. ठीक है? हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yes ma'am. अब सबसे भगवान के पास द नियरेस्ट क्यू, ये सब क्यू है ना, आर दे क्यू और नॉट? और उसके बाद यहाँ पे एक लंबी लाइन ऐसे करके बहुत मतलब फैली हुई है, ऐसे करके बहुत बड़ी है, ऐसे करके यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग. ठीक है? अब क्या हुआ आपको, ये वाली जो क्यू है ना हमारी, ये वाली, आप इसको कह सकते हो दिस इज द रेडी क्यू, बिकॉज सबसे नियर है ये. यहाँ से आप सीधा कहाँ जाओगे भगवान के पास? ऊपर नहीं, दर्शन के लिए. ठीक है? सो व्हाट आई मीन टू से इज, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक डोर्स लगे हुए हैं. ठीक है? तो आप लोग ऐसे दर्शन कर रहे हो, और फिर उसके बाद यहाँ से डोर खुलेगा, फिर आप इस वाले क्यू में चले जाओगे, फिर आप इसमें जाओगे. तो ये सब क्या है, यहाँ एग्जीक्यूशन, यहाँ भगवान नहीं दिख रहे हैं आपको. और एक बार आप इस क्यू के अंदर चले जाओगे ना, तो देन यू वॉन्ट से कि अरे चलो भाई मैं तो थक गया, इस क्यू से बाहर कूद के मैं घर जा रहा हूँ. अब तो आप सोचोगे कि आई विल गो.
बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू कामाख्या टेम्पल 7 AM, ठीक है, और दर्शन हुए 3 PM, एंड आई हैव बीन, मतलब एक बार सोचा भी 12 बजे, इतनी भूख लग रही है, क्योंकि नो वन नोज ना कि कितना टाइम लगेगा, कुछ खाने पीने का नहीं है, पानी नहीं पिया हुआ आपने, आप यू आर फीलिंग सो मच फ्रस्ट्रेटेड. हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. 7 to 3 इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, बस क्यू में खड़े हैं हम लोग, ठीक है. तिरुपति बालाजी में तो फिर भी देर इज, दे आर लोकेटेड ऑन द हिल्स, तो वो बहुत ब्यूटीफुल और एनवायरनमेंट अच्छा होता है. बट यहाँ तो इतनी गर्मी, ह्यूमिडिटी, एंड यू वर जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग, ठीक है. और जैसे ही भगवान जी के दर्शन के लिए आप आए तो धक्का दे के 30 सेकेंड में आगे बढ़ो, ठीक है, इट हैपन्स. तो बेसिकली द थिंग इज वी आर नॉट एग्जीक्यूटिंग देयर. भगवान के पास तो हम यहाँ 10 सेकंड के लिए आए हैं बस, और उसमें भी धक्का मार के आगे चलो. बट ये सब कौन से क्यूज है? डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूज है. एक क्यू इधर है, मान लो एक तरह की क्यू ही है जिसमें हम लाइन में ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है. एक ये वेटिंग लंबा सा एरिया जिसमें हम घूम ही रहे हैं. देन फाइनली ये वाला सबसे क्लोजेस्ट है. ये वाला वो क्यू है जो अब तो सीधा ही कहाँ जाएंगे, बोलिए? भगवान के पास. ऊपर नहीं, दर्शन के लिए, ठीक है. तो द थिंग इज दीज आर 10 people. तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं कोई एक होगा, यहाँ पे भी देयर विल बी सम प्रोसेसेस. सो नाउ इज इट क्लियर और नॉट? हेलो? और अरे एक स्पेशल लाइन तो आई फॉरगॉट अ वेरी स्पेशल लाइन. यहाँ मंदिर का मेन दरवाजा है, यहाँ से डायरेक्टली भगवान के पास जाएंगे. कैसे? 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दो और डायरेक्ट विजिट गॉड, है ना? ये वाला याद है आपको? और 10,000, 11,000 में स्पेशल ट्रेन के आगे खड़े हो जाओ मैम. 11,000 का स्पेशल पूजा करो सीधा भगवान के पास, है ना? सो ये है इस तरह से. आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूज दैट वी हैव ऑल्सो. ये देखो सबसे फास्टेस्ट, सॉरी ये वाला सबसे फास्टेस्ट वाला रेडी है, ये तो बिल्कुल ही फास्टेस्ट है. तो मतलब ऐसे रिलेट नहीं कर रही हूँ मैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. तो अब बताइए क्या ये आपको डायग्राम क्लियर है अच्छे से? हेलो? यस मैम. अब मैं स्क्रीन अनशेयर कर रही हूँ एंड आई एम आस्किंग यू बिट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? जल्दी बताइए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूज. हरी अप. जॉब रेडी डिवाइस. जॉब क्यू, रेडी क्यू, डिवाइस क्यू. ओके, अब एक एक करके बता रहे हैं. जॉब क्यू में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन जॉब क्यू? मैम न्यूली क्रिएटेड प्रोसेसेस वेट करते हैं. रेडी क्यू में क्या होता है? सिलेक्टेड प्रोसेस जो होते हैं जॉब क्यू से वो इधर आ जाते हैं. अच्छा, सो नाउ जॉब क्यू बेसिकली इज व्हिच मेमोरी? सेकेंडरी. Ready queue is which memory? Ready queue? RAM. Main. RAM. Very good. So ready queue are those processes which have been selected by which scheduler? Tell me. Which scheduler selects? Long term. Very good. So long term scheduler selects the process from the job queue which are new and they are just created. And when they go to the ready queue, now they are ready to execute. Okay, is it clear? सबको समझ आ गया इतना? Yes ma'am. Yes ma'am. Then tell me, Yes ma'am. which process select the processes from ready queue to CPU? Short term scheduler. And how do I relate it with your university? How do I relate this short term scheduler with your university? Higher priority. The higher authority. The higher authority. ठीक है? What they are doing? They are scheduling the final year batch to come to the campus and interact with the teachers and have their offline classes, है ना? But the deadly virus once again is attacking after a month. So they stayed in the campus for 1 month, but because of the urgent situation, that is the priority of the deadly virus, the what? Again, the processes, the students who were staying in the campus were preempted and they were again sent back to their home for a fixed quantum, maybe 3 months, 6 months, like this. Agreed or not? And Yes, then ma'am. they Yes, will go, once again go back to the secondary memory, that is their home. They will go back to their home, that is the secondary memory, and stay there. I hope you understand my point. Yes No, ma'am. I don't personally feel that you will ever forget this diagram. Will you? No ma'am. No, ma'am. ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो अब इस डायग्राम को भूल जाए. अगर भूल जाओगे तो फिर आई पिटी ऑन माय टीचिंग. ठीक है मैम चल. लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये क्यू वाला डायग्राम और जो स्टेट वाला डायग्राम तो एकदम सेम नहीं है. हाँ, तो मुझे बस इसमें क्यू एसोसिएट करना था ना, सिंपल. मैंने बोला तो था आपको.
अच्छा इसलिए मैंने बोला था कि दैट वाज द बेस. व्हाई आई सेड दैट वाज द बेस, बिकॉज उसी से सब रिलेटेड है. ठीक है, चलिए नाउ अब हम लोग आते हैं रेडी क्यू में. सो इन रेडी क्यू व्हाट मैम ये डिवाइस क्यू इस पूरे प्रोसेस में कहाँ आता है? डिवाइस क्यू इनपुट आउटपुट के लिए अभी बताऊंगी ना, वेट करो. रेडी क्यू अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने. सो नाउ कमिंग बैक टू द रेडी क्यू. So what is ready queue? It is set of all the processes residing in the main memory, okay, which are ready and waiting to execute. Is it clear or not? What is ready queue? It is set of processes residing in main memory which are ready and waiting to execute, okay. So a newly arrived process is put into the ready queue. Process waits into the ready queue for allocating of CPU. Once the CPU is assigned to a process, then the process will execute, okay. So while executing, the process can face any of the situation. What is that situation? The first situation is process could issue what? Input output request, and then it would be placed in which queue? Input output queue, okay. The process would create a new sub process and will wait for its termination. यहाँ ये जो fork वाली मैंने आपको बात बोली है ना, fork, it will create a new process that we will study in the coming lectures. And the third is the process could be forcibly removed, means forcefully you are removing from the CPU as a result of interrupt and put back into the ready queue. So ये सब जाके बीच में जब भी block होंगे, then once again they will go to the ready queue. So now the third type of queue is ready device queue. So ये कौन सा queue है? The set of processes waiting for whom? Input output are called as device queue. Is it clear or not? बोलिए. चलिए अब हम आते हैं next very important topic. So types of queues I guess is clear to you. Now we'll come back. This diagram is important because इसी से relate करके मैं आपको आगे समझाऊंगी, क्योंकि now we'll be studying about schedulers. ठीक है, चलिए next is coming to know about long term scheduler. Long term scheduler, this is also called as, we also call it as जॉब शेड्यूलर, क्योंकि जॉब को ही तो शेड्यूल कर रहा है ये. दीज टू आर रिलेटेड, ठीक है. सो वी कॉल इट लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और जॉब शेड्यूलर. व्हाट डज इट डू लॉन्ग टर्म शेड्यूलर? एनीवन? प्रोसेस सिलेक्ट करता है. इट सेलेक्ट्स द प्रोसेस व्हिच शुड बी ब्रॉट इनटू व्हिच क्यू? रेडी क्यू. रेडी क्यू, ठीक है. सो इट सेलेक्ट्स द प्रोसेसेस फ्रॉम द जॉब क्यू टू द रेडी क्यू. इज इट क्लियर? एंड ये बहुत ज़्यादा हम लोग इसको कॉल करते रहते हैं, क्योंकि बार बार नए प्रोसेस आएंगे तो वी विल कॉल इट, ठीक है. एंड दिस इज, अब मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे जाऊंगी तो मैं एक बार बाद में बताऊंगी. अभी मैं एक बार थ्योरेटिकली बता रही हूँ, फिर मैं लिख के बताऊंगी, ठीक है. सो जॉब टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है. मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स एनीवन? आई हैव ऑलरेडी टॉट व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग. बोलिए, व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग? मैम जिसमें मल्टीपल सीपीयू यूज होते हैं. मैम जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम सीपीयू में वर्क कर पाए. ठीक है. अब क्या होगा? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट. ओके, तो मैं क्या कह रही थी कि इफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज स्टेबल, देन द एवरेज रेट ऑफ प्रोसेस क्रिएशन मस्ट बी इक्वल टू द एवरेज डिपार्चर रेट ऑफ प्रोसेस लीविंग द सिस्टम. अच्छा, अगर मैं कहती हूँ कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो है हमारे सिस्टम की इज स्टेबल, इट मीन्स जितने प्रोसेस अंदर आ रहे हैं रेडी क्यू में उतने ही बाहर जा रहे हैं, एग्जीक्यूट खत्म कर रहे हैं काम, ठीक है. हेलो, इज इट क्लियर और नॉट? तो यस मैम. multi-programming means the average rate of process creation must be equal to the average departure of the process leaving the system. Okay. Now coming to the next scheduler, and the next scheduler is, yes. मैम इसमें प्रोसेसेस सीपीयू में आ रहे हैं कि रेडी क्यू में? रेडी क्यू में. क्या हो रहा है यहाँ पे? ये देखो ना, ये वाली लाइन है. दिस इज लॉन्ग टर्म scheduler. ओके. Simply selecting the process from job queue to ready queue. अभी ये भी तो डिपेंड करेगा ना, जितने ज़्यादा प्रोसेस को ये एंटर करेगा रेडी क्यू में उतना ही तो मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ेगा ना, उतने ज़्यादा सिस्टम मेन मेमोरी में आ गए, बिकॉज दिस इज सेकेंडरी मेमोरी एंड दिस इज व्हाट? मेन मेमोरी, रैम. राइट.
ठीक है, अब आप लोग तो तब खुश हो गए ना कि फाइनल ईयर को नहीं पूरी यूनिवर्सिटी को बुलाओ. You will be only happy when the whole university will be functional. You are not happy with your seniors. You want equal rights कि हमें भी आना है. Agreed or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Our situation is not like that. Now next, coming to the next scheduler, that is short term scheduler. Short term जो scheduler है उसको हम लोग एक और नाम से बोलते. देखो इसने जॉब को सिलेक्ट किया इसलिए इसको क्या बोला मैंने? What did I say? This was called as job scheduler. Why? Because it was selecting a job from the job queue. This is called as special name. कोई बता सकता है? इसको CPU में भेज रहे हैं सेलेक्ट करके, तो इसलिए इसको क्या कह सकते हैं हम? बोलिए. This is also called as CPU scheduler, short term scheduler or CPU scheduler, or we can also call it as dispatcher. We also call it as dispatcher. Clear है या नहीं? बताइए शाबाश. Yes, ma'am. So Yes, what ma'am. is the role of short term scheduler, or we can also call it as CPU scheduler, or we can also call it as dispatcher. बताइए क्या काम करता है ये? मैम रेडी क्यू से सीपीयू में हम रेडी भेजता क्यू है. से सीपीयू ये में तो हो भेजते गया हैं. ये तो हो गया टेक्निक मतलब डेफिनेशन बेस्ड आंसर. बेसिकली इट विल सेलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस है. ठीक है, अब इस तरह से आप कह सकते हो फॉर द फाइनल इंटरव्यू इन अ कंपनी देर आर 10 स्टूडेंट्स विच आर सिलेक्टेड. उसमें से मुझे एक बच्चा इंटरव्यू के लिए अभी भेजना है. और या फिर आप यू रिमेंबर वाइवा होता था 12th क्लास में 10th क्लास में. यू रिमेंबर साइंस वाइवा? Yes, आप लोगों ma'am. का तो अच्छा आप लोगों का 12th हुआ है क्या? या कोविड में Yes, चला ma'am. गया 12th? नहीं मैम हुआ है. मैम हुआ है मैम. ओके ओके ठीक है. अब्रॉड नहीं है. सो जब आप लोगों का 12th का वाइवा होता है, यू रिमेंबर फिजिक्स में अगर जैसे वाइवा हो रहा है तो व्हाट यू यूज्ड टू डू? अरे यार तू चला जा मुझसे पहले, यू गो फॉर द वाइवा फर्स्ट, आई विल अपीयर लेटर. डज इट हैपन और नॉट? या फिर वाइवा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा लेट हो गया तो यू यूज्ड टू टेल योर टीचर मैम आई विल कम लेटर. सो लाइकवाइज. ठीक है, सो टीचर हैज़ टू सेलेक्ट कि कौन से स्टूडेंट को पहले भेजना है. ठीक है, कुछ लोग तो स्पेशली अपने बच्चों का नाम लास्ट में रखते हैं, मतलब वाई से नाम रखेंगे, क्योंकि ऐसा कहते हैं बच्चे कि अरे तुम यू आर वेरी लकी, योर पेरेंट्स नेम्ड यू, योर नेम इज स्टार्टिंग फ्रॉम वाई डब्ल्यू लाइक दैट. सो क्या होता था फिर? लास्ट में टर्न आता था. तब तक कोई भी एग्जामिनर 1 घंटे में एक्टिव रहता है. लास्टली वो लोग ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं और वो क्वेश्चन रिपीट होने लग जाते हैं, तो लास्ट वाले स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होता है. यू रिमेंबर और नॉट? Yes, ma'am. इसलिए कुछ क्वेश्चंस बचा के रखने चाहिए. और मैं जब आपका वाइवा लूँगी तो आई विल कीप सम स्पेशल क्वेश्चंस फॉर द लास्ट स्टूडेंट्स. ठीक है, चलिए कमिंग बैक टू दिस. सो इट इज़ इन्वोक्ड फ्रीक्वेंटली, सो इट शुड बी फास्ट. देखो एक इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसको कॉल करते हैं हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को. वाई? बिकॉज बार बार कुछ रेडी में आ रहा है तो हमें डिसाइड करना है कि किसे हमें CPU में भेजना है, क्योंकि यहीं पे हमारे CPU scheduling algorithms काम करेंगे. We have 4 scheduling algorithms that I have explained, and in the next lab I will explain that we have 4 CPU scheduling algorithms: FCFS, SJF, priority scheduling, and round robin scheduling. So here the maximum task is done. So which scheduler is called most frequently? Short term scheduler. And that is why if something is called very frequently, you will also remember that every principal or vice chancellor or HOD has a PA, personal assistant, and the personal assistant cabin is just near to, जैसे अगर ये हेड है, हेड के नियर पे यहाँ पे एक छोटा सा कमरा होगा और कभी कभी कमरे के अंदर ही बैठे होते हैं. Why? Even though there are so many teachers, faculties and other people are there, but why this person with so मतलब उसका credential भी कम है but still he is so near, because this person is called most frequently. इसलिए the location of this personal assistant should be near to whom? The head of the department or the principal. Agreed or not? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Because all the official things, all the official files and everything, phone numbers, official records are kept with the personal assistant. I hope you can relate this thing. So something which has to be accessed very fast, something which has to be accessed very frequently, it should be very fast, and that is the reason why they are in the main memory also. Secondary memory में तो late हो जाएगा. ठीक है, clear है?
तो what is the main objective Yes, of ma'am. short term scheduler? The main objective is to increase the system performance. Are you understanding my point? It is to increase the system performance. So out of short term scheduler and long term scheduler, which is faster? बोलिए. Short term scheduler. I hope it is clear to all of you. बोलिए बच्चों. Yes, ma'am. Everyone. Clear है मैम. Okay, third one is medium term scheduler. So last one is medium scheduler, and this is basically used for swapping. It is used for what? Swapping. So what it does, जब आपका मेन मेमोरी में स्पेस कम होता है तो हम उसको कहाँ भेज देते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में. ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा स्पेस फ्री करे. बट दिस विल रिड्यूस व्हाट? दिस विल रिड्यूस व्हाट? Degree of multi-programming. Why? Because more number of processes in the main memory will say that the CPU is having more multi-programming. Less number of CPU and less number of processes in the main memory will show that what? बोलिए. अब देखिए यहाँ पे 100 प्रोसेस थे, out of which 50 you have put back into the suspend state. तो reduce हो गए ना number of process. If the number of processes are reduced, so what you will say about the multi-programming? It will reduce or increase? Reduce. Reduce. So which scheduler reduces the multi-programming? Medium term. Medium term. And which one increases the multi-programming? Long term. Short term. I hope it is very very clear to you. देखो एक डायग्राम ही बनाया मैंने, बट बहुत सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं. Is it clear or not? मैम लॉन्ग टर्म नहीं करता मल्टी प्रोग्रामिंग. लॉन्ग टर्म मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे करेगा? मल्टी प्रोग्रामिंग तब होगा जब ये तो इतने सारे प्रोसेस हैं, इनको सिर्फ सेलेक्ट करके रेडी में डाल रहा है, बट रेडी से जो सीपीयू में जाएगा ना वही तो हीरो है. नहीं समझ आया? आ गया मैम, आ गया. मेन तो ये है ना, मेरी बात सुनने की कोशिश करो. 1000 स्टूडेंट्स वर अपीयर्ड फॉर एन टेक्निकल प्लेसमेंट. ठीक है, प्लेसमेंट के लिए बैठे, जिसमें से एप्टीट्यूड राउंड क्लियर करके ओनली 100 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड इन द रेडी की. अब रेडी में से कुछ 10 स्टूडेंट्स यहाँ सीपीयू में आ गए, फाइनल सिलेक्शन हुए, तो कौन है फिर? सिलेक्शन का क्राइटेरिया किसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है, 1000 या 100? बोलिए. ये तो मैं ऐसे रिलेट करने के लिए बता रही हूँ, बट आई होप यू अंडरस्टूड द मेन कंटेक्स्ट.